All right, so let us start with NEET level questions, previously asked questions in NEET exam. So the current is uniformly distributed over its cross section. So we are starting with the incorrect question. The current is uniformly distributed over a wire. Okay. So current is uniformly distributed over its cross section. किसके cross section पे? Wire के. The current is uniformly distributed over the cross section of a wire of radius A. ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए. So I'm correcting the question at the first place. The current is uniformly distributed over the cross section of a wire of radius A. ऐसा आना चाहिए पहला स्टेटमेंट. आगे the ratio of magnetic field B and B dash at a radial distance A by 2 and 2A respectively from the axis of the wire is. तो आपके पास एक वायर है. I'll show a wire over here. This is that wire with radius A. इस वायर का जो रेडियस है that is nothing but A. Then they are asking you ratio of magnetic field B and B dash at a radial distances A by 2 and 2A from the axis. पहले तो axis दिखा देते हैं. So this is the axis of the wire. This is the axis of the wire. ये वायर का axis. और हमने already बताया है what is radius. You are supposed to find out ratio of magnetic field कहाँ पे? एक तो distance A by 2 पे, मतलब somewhere over here. तो ये half the radius है. So you have half the radius over here. तो ये distance आ गया A by 2. Let us call this point as P. और another point is at a distance of 2A. मतलब एक पॉइंट जो है वो वायर के बाहर है और दूसरा पॉइंट जो है वो वायर के अंदर है. So another point is somewhere over here. Let us say P dash. और इसका जो distance है, इसका distance है 2 times of the radius. So this P point is at a distance of 2A from the axis. तो ये पता होना चाहिए. P dash is at a distance of 2A. आप चाहो तो आप यहाँ पे दिखा दो. Doesn't matter really. So this is 2A distance. पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी था. There is a correction in the question. The current is uniformly distributed over its cross section. गलत. The current is uniformly distributed over the cross section of a wire of radius A. अब आपको पूछा है कि एक पॉइंट है A by 2 डिस्टेंस में, एक पॉइंट है 2A डिस्टेंस पे. What is the ratio of the magnetic fields? सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि केस 2 में द पॉइंट लाइज आउटसाइड द वायर. और आपको पता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर के केस में एट अ डिस्टेंस ऑफ 2A व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? म्यू 0 by 4 pi 2I by distance. Here distance is 2A, right? तो केस 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब B dash is very simple. B dash is nothing but म्यू 0 by 4 pi 2I by 2A by distance, right? तो एक काम करते हैं. Now let us write down some general formulas. ये जो distance है ना, इसको मैं R से denote करता हूँ. Let us say R. The distance here we denote by R. Let us say. तो एक general formula ही बना लेते हैं. तो you will need 2 formulas here. एक for a point inside the wire. For a point inside the wire and another for a point outside the wire. अब for a point outside the wire का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है for a point outside the wire. Outside the wire इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है किसका, जिस पॉइंट पे आप फील्ड फाइंड कर रहे हो, स्मॉल r, वो स्मॉल r ग्रेटर देन a होना चाहिए, ग्रेटर देन रेडियस ऑफ वायर होना चाहिए.
पॉइंट वायर के बाहर कब जाएगा? जब डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज ग्रेटर देन रेडियस, राइट? तो आर ग्रेटर देन ए। इसका तो आपको पता ही है ना, यू नो दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस r, नॉट a। यहाँ पे a इज रेडियस, r is distance. A problem lies over here. In this case, you have field, और ये जो r है it is less than the radius. The point is inside the wire. तो इस केस में आता है mu 0 by 4 pi, and you will have 2ir upon r square, where r is radius of the wire. तो यहाँ पे radius of the wire is 8 upon a square. So we do not derive this equation in theory classes. We are not supposed to derive this. से पता होना चाहिए जब पॉइंट वायर के अंदर है तो वायर के अंदर उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू 0 बाय 4 पाई 2i r बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस ऑफ वायर का स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहां से आपको केस 1 का फील्ड B मिल जाएगा। B will be equal to म्यू 0 बाय 4 पाई 2i, व्हाट इज r, a by 2। पहले केस में r कितना है, a by 2 upon a square, cancel 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 and cancel, so you have mu 0 by 4 pi I by a। then in this case इसको b dash बोल रहा हूं, b dash is mu 0 by 4 pi 2i by r, what is r here, 2a। ये सेकंड केस में डिस्टेंस कितना दिया है, 2a, cancel and cancel, therefore b upon b dash, b क्या था, mu 0 by 4 pi I by a, b dash क्या है, mu 0 by 4 pi I by a, मतलब 1:1, 1:1, ऑप्शन नंबर C। तो आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन, एक ही डिफरेंस है। सेकेंड केस इज इजी क्योंकि सेकेंड केस आपको पता है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू 0 बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस, ये हमको पता है आउटसाइड द वायर। इनसाइड के लिए पता नहीं था, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला है म्यू 0 बाय 4 पाई 2i r बाय a स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ r एंड वायर का रेडियस इज a इज गिवन बाय दैट फॉर्मूला, दैट्स इट। Next question. Good. Current loop consists of two identical semicircular parts. Very good. Words are really important. Current loop है which consists of two identical semicircular parts. एक ही loop है लेकिन उस एक loop में दो semicircular parts है. Each of radius r, one lying in the xy plane and the other in the xz plane. If the current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the two semicircular part at their common center is. So in such type of question, सबसे पहले तो you have to understand the geometry of the problem. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास 3 dimensions है और होने चाहिए, दिखाना पड़ेगा 3 dimensions आपको। तो now if I say this is x axis, this is let us say y axis, this is z axis. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक करंट लूप के दो सेमीसर्कुलर पार्ट्स है, दोनों का रेडियस r है, एक है xy प्लेन में। तो पहले मैं xy प्लेन का दिखा देता हूं। तो xy प्लेन का इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड दूसरा xz, सो सेकेंड पार्ट इज देयर इन द xz प्लेन, तो समथिंग लाइक दिस। तो एक it is like coming towards you, दूसरा it is perpendicular to you like this, okay। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं so as to have a better understanding, you can put it like this, okay। और दोनों का रेडियस सेम और इन दोनों का कॉमन सेंटर, let us draw a common center somewhere over here, this is common center, good। और दोनों में करंट इज द सेम, दोनों का करंट है I, तो करंट जाएगा कैसे, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, फिर यहाँ पे आया फिर ऐसा आएगा,
गुड। या तो नीचे अगर डायरेक्शन आप चेंज किया तो फिर ऊपर भी डायरेक्शन चेंज होगा करंट का, करंट विल गो like this. Okay, the resultant magnetic field due to the two parts at their common center, let us say O, is, first of all, do you remember how to find out magnetic field due to current in arc of the loop? General formula mu 0 by 4 pi I theta by radius, तो ये पता होना चाहिए। अब जो xy प्लेन में है इसको मैं 1 बोलता हूँ और जो एग्जैक्ट प्लेन में इसको मैं 2 बोलता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल due to 1 it is mu 0 by 4 pi I by r, and due to 2 is also theta is pi, तो pi। और सेकेंड केस में भी it is mu 0 by 4 pi I by r into pi, pi कैंसल, और देखो आंसर में कहीं पे भी पाई नहीं है। गुड। डायरेक्शंस, इमेजिन राइट हैंड थंब रूल, कर्ल्ड फिंगर्स दे गिव यू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो लूप है एक्स वाई प्लेन में, मतलब इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू मतलब राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऊपर। तो ये हियर द फील्ड इज गोइंग अप, तो ये आ गया आपका B1 का डायरेक्शन। मैं थोड़ा बड़ा इंटेंशनली बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ये आ गया B1, एंड देन दिस लूप, मतलब ऑफ कोर्स इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड लूप करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज एंड थंब इज टुवर्ड्स यू, मतलब कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो सेकेंड जो मैग्नेटिक फील्ड है it is coming out, so B2 is coming out, so B1 and B2 are perpendicular. Very good. So you will have B1 and B2 are perpendicular। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट इज B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos of थीटा, बट एंगल इज 90, दोनों में cos 90 इज 0, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट। तो B1 स्क्वायर और B2 स्क्वायर दोनों सेम ही है। एक काम करो, सेम है ना, तो अच्छा है हमारे लिए, बिकॉज आई कैन राइट डाउन B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू डायरेक्टली म्यू 0 I by 4r, म्यू 0 I by 4r। तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये आ गया म्यू 0 I अपॉन 4r का स्क्वायर प्लस वापस से एक बार, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 2 टाइम्स। तो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स म्यू 0 I by 4r का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। गुड। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, तो ये मिल जाएगा आपको म्यू 0 I अपॉन 4r इंटू रूट 2। So what is 4? 4 is 2 into 2. 2 into 2. What is 2? It is root 2 into root 2. तो एक 2 को मैंने रूट 2 into root 2 लिखा है, और ये रूट 2 और ये रूट 2 कर दिया कैंसल आउट, तो म्यू 0 I अपॉन 2 रूट 2 r, ऐसा कुछ आना चाहिए। म्यू 0 I अपॉन 2 रूट 2 r, ऑप्शन नंबर ए। Next question. Two similar coins of radius r are lying concentrically with their planes at right angles to each other. The currents flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. Okay, तो सबसे पहले before we do this question, we should do one more question, और एक जनरल फॉर्मूला ही बना लेंगे, so that will help us to solve such questions directly without putting a lot of time. So here we go. Just a minute. Let me locate that question. कहाँ था? Wait a minute.
So. Okay, so I don't have it here. This is the one. Good. अब एक क्वेश्चन है, आपके पास टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स दिए हुए हैं AOB एंड COD. They are perpendicular to each other. Okay, and carry current I1 and I2. तो आपके पास दो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स है, कंडक्टर नंबर 1 एंड कंडक्टर नंबर 2. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक अलोंग x एक्सिस है तो दूसरा अलोंग y एक्सिस है. You are supposed to find out the magnitude of the field at point P, और वो point P कहाँ पे है? Z एक्सिस पे है. According to the question, you have one wire along x, another wire along y. x में करंट है और y में भी करंट है और आपका पॉइंट है Z एक्सिस. हमेशा याद रखना ऐसे केसेस में, चाहे वो कंडक्टर स्ट्रेट लाइन हो या फिर वो कंडक्टर सर्कुलर लूप हो, अगर दो कंडक्टर्स या दोनों कंडक्टर्स का प्लेन, मैं प्लेन क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सर्कुलर लूप, यू हैव वन सर्कुलर लूप एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू इट. एक सर्कल XY प्लेन में और दूसरा YZ प्लेन में, दोनों परपेंडिकुलर जब हो तो उनके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड्स भी परपेंडिकुलर होते हैं. अगर दो स्ट्रेट कंडक्टर हो तो इन दैट केस you have this final formula of induction, which is given by mu 0 by 4 pi 2a I1 square plus I2 square का root. So please note this formula. This is when you have two long straight perpendicular conductors. The resultant magnetic field at a point is given by this. Mu 0 by 4 pi 2 by a under root of I1 square plus I2 square raised to half. Correct? किसका फॉर्मूला है ये? टू लॉन्ग स्ट्रेट परपेंडिकुलर कंडक्टर्स. I1 is the current in one wire and I2 is the current in second wire. ये पता होना चाहिए. Then, if you know this, now हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इतना ही डिफरेंस है. In this question, you have two similar coils of radius r lying concentrically with their planes at right angles to each other. ऐसा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी. I already solved this question. याद होगा आपको, एक सर्कल ऐसा, it is in the XY plane, और दूसरा जो सर्कल था वो था YZ प्लेन में. वी हैव सॉल्व फॉर दिस आल्सो, इफ यू रिमेंबर. ऐसा एक स्ट्रक्चर लिया था हमने. अब दोनों के सेंटर, दोनों का सेंटर है सेम, कॉन्सेंट्रिक, बट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टू लूप्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब एक काम करेंगे, एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे और हम इसको हर बार फॉर्मूला के फॉर्म में यूज करेंगे. ये अंदर का कंडक्टर नंबर 1 है, इसमें करंट I1 है. बाहर का कंडक्टर जो है कंडक्टर नंबर 2 है, इसमें करंट I2 है. लेट अस से कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर नंबर 2. गुड. देन I1 की वैल्यू आपको I बोला है और I2 की वैल्यू आपको 2I बोला है. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है. तो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का रेडियस इज सेम. डू यू रिमेंबर जनरल फॉर्मूला फॉर इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप? mu 0 I अपॉन 2R, क्योंकि 4 पाई और ऊपर 2 पाई तो नीचे 2 बचता है. वेरी गुड. तो पहले लूप का इंडक्शन होगा mu 0 I1 अपॉन 2R और दूसरे लूप का इंडक्शन होगा mu 0 I2 by 2R. तो नेट इंडक्शन आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर आने वाला है. तो चाहे वो दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, चाहे दो सर्कुलर लूप्स एट राइट एंगल हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. उसका जनरल फॉर्मूला आपने देखा,
अब इसका जनरल फॉर्मूला बना लेंगे एंड नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू ऑल दिस डायरेक्टली फॉर्मूला पुट वैल्यूज एंड डन अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में से म्यू 0/2r म्यू 0/2r कॉमन है तो म्यू 0/2r का स्क्वायर आउटसाइड आएगा। आर यू फॉलोइंग? Some people are not following because they are not paying attention. B1 ये फॉर्मूला और B2 ये पता होना चाहिए। Now I cannot go back and tell you फॉर्मूला कहाँ से है, ये पता होना चाहिए। So this is mu 0 I1 upon 2r का स्क्वायर प्लस mu 0 I2 upon 2r का स्क्वायर। इसमें से म्यू 0/2r स्क्वायर म्यू 0/2r स्क्वायर दोनों टर्म्स में से निकलेगा कॉमन म्यू 0/2r ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ बचेगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये आएगा आपका स्क्वायर रूट के बाहर म्यू 0/2r I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का रूट रेज़ टू हाफ मतलब, राइट। नाउ कंपेयर विथ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कंपेयर विद टू लॉन्ग स्ट्रेट परपेंडिकुलर वायर्स। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, नीचे एक पाई आएगा, दैट्स इट, दैट इज ओनली डिफरेंस। नीचे एक पाई आएगा अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में नीचे पाई होता है एंड सर्कुलर लूप के सेंटर पे पाई नहीं होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो एक ही फॉर्मूला सिर्फ देखना, हाँ लूप है क्या तो नीचे पाई नहीं लिखना है। गुड। नाउ इफ यू नो दिस जनरल फॉर्मूला तो दिस इज डन, क्वेश्चन इज डन। म्यू 0/2r पहले में करंट था I स्क्वायर, दूसरे में करंट था 2i तो 4i स्क्वायर का रूट। तो ये आएगा आपके पास म्यू 0/2r 5i स्क्वायर और उसका रूट 5 का रूट इज √5 और i स्क्वायर का रूट इज i। तो है क्या ऐसा √5 म्यू 0i/2r। So if you know this kind of formulas, it is very simple for you to solve this question. Next question. Oh, very good. Something related to vectors finally. A wire carrying current I has the shape as shown in the adjoining figure. So you have a wire. तो अच्छे ध्यान देना wire कैसा है। See wire how it is going. Wire is going like this. ऐसा है, मतलब स्ट्रेट है। उसके बाद एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, सो यू हैव अनदर सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस वायर एंड देन अगेन यू हैव अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ दिस वायर, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा है। गुड। तो दो सेमी इन्फिनाइट, याद रखना दिस इज नॉट इन्फिनाइट। इन्फिनाइट वायर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, एक्स इज पॉजिटिव हियर, प्लस इंफिनिटी से जीरो तक ही जा रहा है वो, इट इज नॉट गोइंग टू नेगेटिव इंफिनिटी, बोथ ऑफ दिस। So do you remember what was the magnetic field at a perpendicular distance a due to a finite infinite wire? Mu 0 by 4 pi 2i by a distance। वो इन्फिनाइट वायर था, ये क्या है सेमी इन्फिनाइट। तो उस केस का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका हाफ यहाँ पे आएगा। तो ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई राइट इट डाउन, डोंट वरी। आगे linear parts of the wire are very long and parallel to x-axis, very long. Look, not infinite, very long, मतलब semi infinite की बात चल रही है यहाँ पे। While semicircular portion of radius r is lying in the yz plane, magnetic field at point O at the center, मतलब basically। तो याद रखना, you need to know number one, magnetic field due to current in semi infinite, ये याद रखना, infinite wire is half of, you remember half of किसका half, infinite wire का, half of magnetic field due to infinite wire। So this is half of
and you already know this, mu 0 by 4 by 2 I by distance. Cancel. So this is just mu 0 I by 4 pi e. ये पता होना चाहिए. अब एक काम करते हैं, इनका नंबरकरण कर देते हैं, नामकरण नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. नाउ तीनों पार्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. इसमें से 1 और 3 का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि 1 भी सेमी इन्फिनाइट है और 3 भी सेमी इन्फिनाइट है. तो ये पता होना चाहिए पार्ट 1 का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और पार्ट 3 का मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय a मतलब r, ओके, रेडियस r. Do not get confused. यहाँ पे आपने पॉइंट P दिया था और ये डिस्टेंस को बोला था a. हाँ, और बोलते हो आप यहाँ पे म्यू 0 बाय 4 बाय 2I बाय a. अब इस वायर को मैंने जब हाफ ही रखा है, मैंने इस वायर को आधा काट दिया, मैंने सिर्फ हाफ ही पार्ट लिया, तो मैं उसी पॉइंट पे फील्ड निकाल रहा हूं ना. तो a मतलब कितना, r. तो ये पता होना चाहिए a इक्वल टू r. ये हो गया मैग्नीट्यूड. बट डायरेक्शन वाइज B1 का डायरेक्शन और B2 का डायरेक्शन देखना पड़ेगा. B1 करंट का डायरेक्शन देखो, करंट इज लाइक दिस. इमेजिन long straight wire to be held in your right hand with thumb outstretched, fingers curled. Thumb is giving you direction of current and fingers will give direction of magnetic field. So look, नहीं, O पे find करना है, O पे. Look what is happening. ये x axis आपके तरफ आ रहा है, ये y axis है, z axis ऊपर है, x axis is towards you. So current is going inside. पहले part it is going inside. So magnetic field will be downwards. अरे look, point वायर के राइट साइड पे पॉइंट है, वायर की. तो राइट साइड पे फिंगर्स कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स. तो B1 का डायरेक्शन आएगा डाउनवर्ड्स मतलब किसके डाउनवर्ड, z को अपोजिट मतलब माइनस व्हाट इज डायरेक्ट x डायरेक्शन, i कैप की, j कैप की, k कैप, i कैप. व्हाट इज y डायरेक्शन, व्हाट इज z डायरेक्शन, तो व्हाट इज माइनस z डायरेक्शन, माइनस k कैप. तो B1 जो है इसका डायरेक्शन है माइनस k कैप. तो B1 का डायरेक्शन आएगा माइनस k कैप. क्या आएगा माइनस के कैप. जिनको अभी भी नहीं समझा है, ये जो बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, जो ऑनलाइन है, जिस मोबाइल पे आप देख रहे हो, ये बोला है y एक्सिस, ये बोला है z एक्सिस. दिस इज y, दिस इज z. ऑब्वियसली x विल बी कमिंग आउट टुवर्ड्स यू. तो करंट जा रहा है उल्टा. अभी करंट उल्टा जा रहा है और जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हो वो यहाँ पे. तो करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ. लुक एट द थंब रूल, करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ थंब. तो ओ पॉइंट पे फील्ड कहाँ पॉइंट कर रहा है, नीचे मतलब किसको अपोजिट, z को अपोजिट. मतलब क्या, माइनस z मतलब माइनस k कैप. तो ये माइनस k कैप, ये पता होना चाहिए. अब थर्ड पार्ट में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा करंट का. नाउ द करंट इज कमिंग outside and still your fingers are pointing down. मतलब यहाँ पे भी direction is minus k cap. Okay, तो यहाँ तक clear? Yes. Now you see आंसर आ गया. ऑप्शन सी. पहली बात तो ऑप्शन ए में क्रॉस प्रोडक्ट दिया है, क्रॉस होगा क्या, नहीं, तीनों का एडिशन होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3. और उसमें भी B1 और B3 में माइनस k कैप है, तो माइनस और माइनस माइनस 2k कैप, तो माइनस 2k कैप. डन. फिर भी कर लेते हैं सॉल्व पूरा. अब सेमी सर्कुलर पार्ट, करंट 1 से जाने के बाद 2 में जाएगा क्लॉकवाइज,
फील्ड इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड, आउटसाइड था प्लस एक्स और दिया है प्लस एक्स, तो इनसाइड क्या होगा माइनस एक्स। तो यहाँ पे इनसाइड मतलब इट इज क्रॉस, क्रॉस क्योंकि गोइंग इनसाइड, तो B2 इज म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय R इंटू थीटा, थीटा इज पाई, और ये आ जाएगा I कैप विथ माइनस साइन, ये और ये कैंसल, तो आपको मिल गया माइनस म्यू 0 बाय 4R I, और यहाँ पे आ गया I कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड will be, total magnetic field will be vector wise B1 bar plus B2 bar plus B3 bar, इसमें से B1 और B3 इक्वल है माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई I बाय R के कैप, ये हो गया B1, और इतना ही आएगा आपके पास B3। B2 इज अगेन विथ अ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस म्यू 0 बाय 4 R I और I कैप, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो, इन्होंने तो सभी कॉमन, हर जगह पे 4 पाई कॉमन निकाला है, तो आई विल टेक आउट म्यू 0 बाय 4 पाई कॉमन, I बाय R भी कॉमन, राइट, नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं, नेगेटिव साइन भी कॉमन। तो अब नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो बीच में माइनस आएगा क्या? हाँ नहीं, तो जब तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो डोंट बी इन हरी, तो माइनस के कैप और माइनस के कैप का माइनस बाहर आ गया, तो बचेगा 2k कैप, इसका म्यू 0 I बाय 4R निकालना चाहिए था, हमने पाई भी निकाल लिया, पाई था क्या यहाँ पे? नहीं, तो ऊपर एडजस्ट करोगे पाई I कैप प्लस माइनस म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R पाई I कैप प्लस 2k कैप है क्या, माइनस म्यू 0 I 4 पाई R पाई I कैप प्लस 2k कैप, तो जिसमें ऑप्शन नंबर सी बोला था -1। डोंट बी इन हरी, वेक्टर फॉर्म में यू शुड नॉट बी इन हरी, उसको पूरा सॉल्व करो, डायरेक्शंस निकालो एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड देन ऐड एंड देन व्हाटएवर द आंसर यू विल गेट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, good, easy, simple, an arrangement of 3 parallel wires placed perpendicular to plane of paper carrying same current I, 3 वायर्स है, एक A पे है, एक B पे है, एक C पे है, तीनों में सेम करंट है I along the same direction, good, मतलब A के लिए भी करंट इज इनसाइड, B के लिए भी इनसाइड, C के लिए भी इनसाइड, या तीनों के लिए आउटसाइड, सेम। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, ओके, ऑन द मिडल वायर बी एस। अब ये जो मिडल वायर बी है, इट इज इन द फील्ड ऑफ ए एंड सी, क्योंकि ए में जब करंट जाएगा तो उसका फील्ड प्रोड्यूस होगा, और बी वायर ए के फील्ड में है, सी में से जब करंट पास होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और बी सी के फील्ड में है, और क्योंकि बी में भी करंट है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो बी में भी करंट होना चाहिए, अगर बी में करंट नहीं तो देयर इज नो फोर्स। आप बोल दोगे स्टेशनरी वायर है उसमें कोई करंट नहीं है, देयर इज नो फोर्स, बट दे हैव सेड कि तीनों में सेम करंट है, और वेरी गुड, ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द मिडल वायर, नॉट ओनली फोर्स बट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डू यू रिमेंबर, पहले तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, डू यू रिमेंबर फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर वायर, it was mu 0 by 4 pi 2 I1 I2 L by distance, 2 I1 I2 length by distance A, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला है, तो लेंथ यहाँ पे पहले ही डिवाइड कर दो, और इसको हम बोल देंगे स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ आई एम डिनोटिंग फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन बी। अब ऐसा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू ए एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बी ड्यू टू सी, तीन वायर थे, तो ये आ जाएगा म्यू 0 बाय 4 पाई, वेरी गुड, 2 I1 I2
2IB और IA अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज D, डिस्टेंस इज D। यहाँ पे भी म्यू 0 बाय 4 पाई। इतना करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि I सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज वी आर डूइंग सच क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 2IB IC upon distance is again D. So you should know basic stuff. This is basic stuff. Now you know that सब में करंट सेम, तो ये 2I square by D और ये भी आएगा सेम। You will get this also the same D and D, right? मतलब इसका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on B due to A and force acting per unit of B due to C is equal F. Okay, और ऊपर से दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस होंगे। क्यों? You remember law, left hand rule. If middle finger gives the direction of field, index finger of current, then thumb is force. अब पहले तो C वायर में लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो अंदर की तरफ करंट जा रहा है, पहले तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करो, सी का मैग्नेटिक फील्ड बी पे उसका डायरेक्शन फाइंड करो। तो राइट हैंड थंब रूल, पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ओके, तो करंट इज गोइंग इनसाइड, राइट? So what will be direction of magnetic field? Direction of magnetic field due to C at the location of D. Magnetic field is always curled. याद है क्या? Magnetic field due to long straight wire. Basics बोल के नहीं चलेगा. Magnetic field due to long straight current carrying wire is always circle around it. Always circle. हाँ, तो इसका भी सर्कल ही आएगा, इसका भी सर्कल के फॉर्म में आएगा, और मान लो कि यहाँ पे ये फील्ड ऐसा जा रहा है, so it is going something like this. और सिमिलरली ए का केस जो है वो फील्ड ऐसा जाएगा। तो दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर है बाय द वे, ज्यादा सोचो मत यहाँ पे, बिकॉज यू डोंट नीड दैट मच थिंग, यू जस्ट नीड टू नो कि दोनों फोर्सेस, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल है नहीं, दैट्स इट। नहीं भी होता तो भी परपेंडिकुलर फोर्सेस होते, तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। FBA is perpendicular to FBC, therefore resultant force, what is the net force? Under root of F1 square plus F2 square, F square plus F square मतलब 2 times of F square मतलब root 2 F। जिनको नहीं समझा, समझ में आना चाहिए। It is very simple thing, extremely simple thing. It is F1 square plus F2 square, FBA square मतलब plus FBC square, और ये दोनों है इक्वल, तो F square plus F square मतलब root 2 times of F square, और F square को मैंने रूट से बाहर निकाल लिया, तो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ is root 2 times of F, but what is F? ये आ गया आपका म्यू 0 by 4 पाई, म्यू 0 by 4 पाई 2I square by D, तो म्यू 0 by म्यू 0, ओके, 2 म्यू 0 I square, हाँ है ना, रूट 2, दिस इज रूट 2 अपॉन 4 मतलब 2 into 2, ये 1 जा और ये 2 जा, दिस इज म्यू 0 by रूट 2, म्यू 0 by रूट 2, म्यू 0 by रूट 2 पाई, और ये I square by D, म्यू 0 I square, म्यू 0 I square, और डिनोमिनेटर में रूट 2 पाई D square, रूट 2 पाई D square, ऑप्शन नंबर D. So that's it for today. We'll stop at this question.